پاکستان کا بھارتی پروپیگنڈے کے جواب میں عالمی سفارتی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرنے کے لیے وفد کی قیادت بلاول بھٹو کو سونپ دی۔ بلاول بھٹو زرداری اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ یورپ جائیں گے، عالمی برادری کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ وزیر اعظم نے درخواست کی ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کروں، دنیا میں پاکستان کا امن کا موقف پیش کروں، ان مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم ہے، عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنے پر فخر ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وفد میں ڈاکٹر مصدق ملک، خرم دستگیر، شیری رحمان، ہنا ربانی کھر شامل ہیں، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ، جلیل عباس جیلانی بھی شامل۔ وفد لندن، واشنگٹن، پیرس اور برسلز جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کی سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی کوشش پر اظہار تشویش۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو بتایا کہ بھارت کے اس اقدام کو غیر قانونی اور پاکستان کے لیے سرخ لکیر سمجھتے ہیں۔ جموں و کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی کنجی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق ایرانی صدر نے کشیدگی کے دوران شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا، امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، علاقائی روابط اور سلامتی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے سرکاری دورے کے دوران ایرانی صدر کی دعوت قبول کر لی، اگلے ہفتے تہران جائیں۔ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان آج پھر رابطہ ہوگا۔ جمعرات کو ہوئی گفتگو میں جنگ بندی میں اتوار تک توسیع پر اتفاق ہوا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ وہ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے پر کام کر رہے ہیں، بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ٹی وی انٹرویو میں اسحاق ڈار نے بتایا کہ ڈی جے ایم اوز کے مذاکرات کے کئی راؤنڈز ہو چکے ہیں، اگلا مرحلہ مذاکرات کا ہوگا، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے جن طالبان کے لیے امریکہ اور مغربی ممالک کے الزامات برداشت کیے، دہشت گرد ملک کے طور مشہور ہوئے، آج وہی کابل، وہی طالبان اسرائیل سمیت ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا یہ وہ نہیں کہہ رہے، یہ پروین ساہنی کہہ رہے ہیں جو بھارتی میڈیا کے مستند آواز ہیں۔ سینئر صحافی اور دفاعی تجزیہ کار نے کہا کہ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور پر دنیا بھر میں صرف اسرائیل اور افغانستان نے بھارت کی حمایت کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ تاریخ گواہ رہے گی کہ چند گھنٹوں میں مسلح افواج نے دشمن کو پسپا کیا، وطن کے سپود، قوم کے پائیدار جذبے سے سرشار ہو کر سیسا پلائی دیوار بنے۔ شہداء کی قربانیاں ایک مقدس امانت اور قومی فخر کا باعث ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے گجرانوالہ چھاؤنی کا دورہ کیا۔ صدر مملکت کی آمد پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ان کا استقبال کیا۔ صدر مملکت نے مارکہ حق کی کامیاب تکمیل میں پاک افواج کی مثالی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ کردار کو سراہا۔ کہا مسلح افواج نے پاکستان کی طاقت، ثابت قدمی، قومی یکجہتی کا دو ٹوک پیغام دیا۔ صدر مملکت نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کے دوران ان کے بلند حوصلے کو سراہا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ دس روز کے تعطل کے بعد HBL-PSL 10 کے میچز کا آغاز ہو گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا میچ دیکھنے پنڈی اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ کھیل کے دیوانوں کا جوش عروج پر سبز ہلالی پرچم کی بہاریں، پاکستان کی بہادر مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ معروف گلوکاروں نے حاضرین کا لہو گرمایا۔ پشاور زلمی خصوصی گرین کٹ پہن کر میدان میں اتری۔ میچ سے پہلے شہدائے وطن کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا PSL افواج پاکستان کے نام کرنے کا اعلان۔ پاکستان سپر لیگ کے 3 دن آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے نام، پہلا دن آرمی، دوسرا دن نیوی اور تیسرا دن ایئر فورس کے نام کر دیا گیا۔ اسٹیڈیم میں آتش بازی کا دلکش مظاہرہ۔
पाक भारत मुज़ाकरात में मसला कश्मीर सरे फहरिस्त होगा। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान जंग बंदी पर कायम है मगर अपने दिफा से हरगिज़ गाफिल नहीं। भारत ने अगर दोबारा जंगी महाज खोलने की गलती की तो फौरी जवाब दिया जाएगा। भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। अमरीकी अखबार के मजमून में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार। अखबार के मुताबिक भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही खामोश दबे जनरल आसिम मुनीर नुमाया और जारहाना किरदार में नजर आए। बुनियानुम मरसूस में कामयाबी से पाक फौज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। सियासी जमातों शहरियों ने पाक फौज की कारकर्दगी पर खुश होकर रैलियां निकाली। ताकतवर पड़ोसी से जंग जीत कर पाकिस्तान ने संगीन मसाइल फिल वक्त पस मंजर में कर दिए। अरसे से सियासी इक्तसादी सलामती बहरानों का शिकार पाकिस्तान फतह मुल्क के एहसास में है। बरतानिया, अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार सीज़ फायर के लिए एतमाद साजी के इक़दामात पर भी काम कर रहे हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर भी काम जारी रखा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमे का बरतानवी एजेंसी को इंटरव्यू। भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की मुअत्तली के सवाल पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन पर जोर देंगे कि वो सेंतास मुआहदे की पासदारी करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जो लोग कहते थे कि फौज अपना काम नहीं करती, आज उनसे सवाल करें कि क्या फौज ने अपना काम किया या नहीं। इस्लामाबाद में तलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए कहा कि क्या आप आज उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते थे जो अफसरान और जवानों के खिलाफ बातें करते थे। पाकिस्तान की फौज अवाम में से है और अवाम पाकिस्तान की फौज से है। DGISPR ने कहा कि मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। जब अवाम और फौज इकट्ठे होंगे तो इस मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ना सिर्फ महफूज है बिल्कुल रोशन और ताबनाक है। पाकिस्तान की जो फौज है वो अवाम से है और अवाम पाकिस्तान की फौज से है। ये जो सीसा पलाई दीवार है, ये जो आनी दीवार है, ये क्या है? ये आप है, इस मुल्क के अवाम है। भारतीय मीडिया ने गजा में धमाकों की वीडियोस पाकिस्तान पर हमले के तौर पर चलाईं। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय मीडिया पाक भारत कशीदगी के दौरान रियासती प्रोपेगेंडे का हथियार बन गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे ने भारतीय जमहूरी दावों को मशकूक बना दिया। इन तमाम खबरों का ना कोई सबूत मौजूद था, ना कोई आज़ाद तस्दीक। भारतीय मीडिया ने इन दावों को ऐसे पेश किया जैसे ये हतमी हक़ाइक़ हों। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की खबर गलती थी। भारतीय हुकूमत ने सच बोलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया। भारतीय हुकूमत की कानूनी दरखास्त पर 8000 से ज़ायद अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक किया गया। ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स की अक्सरियत पाकिस्तानियों की है। भारतीय वज़ीर आज़म का दरियाए चिनाब, झेलम और सिंध से पानी का बहाव कम करने के लिए नए मंसूबों की प्लानिंग तेज़ करने का हुक्म। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि भारत के ज़ेर गौर मंसूबों में दरियाए चिनाब पर बनी रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दोगुना करना भी शामिल है। नहर की तौसीब पर बातचीत के बारे में पहले कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि रणबीर नहर की तौसीब के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है। चीन के J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के हाथों फ्रांसीसी तैयारा रफाल के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। पाकिस्तान पर भारतीय हमले में रफाल तैयारों की तबाही मगरिब के लिए एक सबक है। जर्मनी के अखबार में शाया आर्टिकल के मुताबिक भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मज़ाहमत मिली। तकनीकी बरतरी के जोम में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। रफाल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे का कहना है कि चीन का J-10 लड़ाका तैयारा अमरीका के F-16 तैयारों की बरामदात को तबाह कर सकता है। चीन की कोशिश है कि वो J-10 को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। अगर चीनी कंपनियां अमरीकी F-16 की फ़रोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा।
मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद और पेशावर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41, लाहौर में 42, कोयटा और कराची में 36 डिग्री रहने की तवक्को है। कराची में 40 डिग्री जैसी गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात की आज शाम और रात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। मलकंड में पहाड़ी सिलसिले में लगी आग ने गनियार के जंगल को लपेट में ले लिया। 6 रोज कबल लगी आग ने 15 किलोमीटर पहाड़ी सिलसिले को लपेट में ले लिया। आग से बड़े पैमाने पर जंगली हयात को नुकसान पहुंचा है। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में ब्यूटी पार्लर में खातून का कत्ल। पुलिस के मुताबिक पार्लर की मालिकन साइमा को उसके शौहर ने कत्ल किया है। साइमा ने 1 हफ्ता पहले शाहमीर से दूसरी शादी की थी। मुलजिम ने तेज धार आले से खातून को कत्ल किया और लाश को आग लगाई। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस केस की समाअत। अदालत ने 24 मई को जिना हाउस हमले के मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में मुकदमे पर समाअत की। अदालत ने 267 मुल्ज़मों को फर्द जुर्म की नकूल तकसीम की। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर ज़ेर हिरासत मुल्ज़मों की हाजिरी मुकम्मल की गई। आलिया हमजा और खदीजा शाह समेत दीगर मुल्ज़मान जेल ट्रायल में पेश। पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाली कंवल शोजिम की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कंवल शोजिम ने कहा कि अलीमा आपा आपसे बात करना चाहती हूं। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस पर अलीमा खान ने कहा कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो गई है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कंवल शोजिब ने कहा कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तिलाफ या गिला नहीं है। मेरा और अलीमा आपा का कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो हमारी बड़ी हैं और हमारी उनसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। और वो जो वीडियो निकाली गई थी वो एक इंटरनल जूम मीटिंग की काट के लगाई गई है। उससे पहले की बात, उसके बाद की बात जो है वो नहीं बताई गई। मामला ये नहीं है कि हमें अलीमा आपा से कोई किसी किस्म का कोई गिला या कोई इनसिक्योरिटी है। उनका नाम यूज़ करके कुछ लोगों ने ट्रेंड्स चलाए थे। कोयटा में 320 ग्राम तंदूरी रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने 1 माह कबल 360 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की थी, जिस पर तंदूर मालिकान ने एहतजाज किया था। ज़िले प्राइस कंट्रोल कमेटी ने रोटी के वजन में 40 ग्राम की कमी कर दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रिहैब सेंटर से 10 से ज़्यादा मनशियात के आदी अफराद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मनशियात के आदी अफराद दीवारें और छतें फलांग कर भागे। इलाका मकीनों का रिहैब सेंटर में एहतजाज और तोड़फोड़। कहा सेंटर से नशे के आदी अफराद फरार होकर घरों में घुसते हैं। इसराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए, मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान, ज़ालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। कहा महासरे और फाका कशी की पॉलिसी बैनुल अक़वामी कानून का मजाक उड़ाती है। इमदाद की नाकाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। इराक़ में अरब लीग का इजलास। इसराइल से गजा में नस्ल कुशी मुहिम और मुनज़्ज़म हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च। सरजमीन फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के 77 साल पूरे होने पर लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद की रैलियाँ। इसराइल से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने और फ़लस्तीनियों की ज़मीन वापस करने का मुतालबा। हुकूमत बरतानिया से इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी रोकने का मुतालबा भी किया। अमरीकी रियासतों केंटकी और मिजूरी में हवा के बगोलों और शदीद तूफान से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद हलाक। मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 3 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। वस्ती, मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान आया है। मैक्सिको का बहरिया का तरबियती जहाज़ न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया। हादसे में 20 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। हंगामी इमदादी कार्रवाइयाँ, जानी और माली नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है।
कैलिफोर्निया के तिब्बी मरकज में बम धमाके से एक नामालूम शख्स हलाक, 4 जख्मी। पाम स्प्रिंग्स में धमाका, पार्क की गई कार या उसके करीब हुआ। FBI के मुताबिक बमबार ने फर्टिलिटी क्लिनिक को जानबूझकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। वाकई में एक शख्स से बात करने का इरादा भी जाहिर किया गया, ताहम उसके बारे में नहीं बताया। लिखाई में, पढ़ाई में अभी जब उम्र बढ़ती गई तो अल्लाह ने आसानियाँ बनाई। अभी कोई मुश्किल नहीं होती। पेपर में आम बच्चों की तरह ऐसी आसान खुद टाइम में दे देता हूँ। मेरे शौक़ जो है वो मैं डॉक्टर बनूँ, इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। क्वेटा के 17 साल के तालिब इल्म रफ़ीउल्लाह ने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से माजूरी को शिकस्त दे दी। पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम रफ़ीउल्लाह पाँव से FSC के पर्चे दे रहा है। इम्तिहानी अमले के मुताबिक रफ़ीउल्लाह किसी की मदद के बगैर खुद पर्चा हल करता है और इजाफी शीट भी लेता है। रफ़ीउल्लाह डॉक्टर बनना चाहता है। HBL PSL 10 में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त देकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। डेविड वार्नर ने 86, जेम्स वेंस ने 72 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 43 और मोहम्मद नबी 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोनों ने आखिरी 12 गेंदों पर 52 रन का इजाफा किया। पेशावर ज़ल्मी की टीम 5 विकेट पर 214 रन बना सकी। बाबर आजम 94 और साइम अयूब 47 रन बनाकर नुमाया रहे। FA कप के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को क्रिस्टल पैलेस के हाथों अपसेट शिकस्त। क्रिस्टल पैलेस ने 1-0 से मैच जीतकर पहली बार बड़ी ट्रॉफी अपने नाम कर ली।